بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویئرس، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہادیہ کا تعلق ایک پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ بہت زیادہ غریب، بس اچھی ہی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ہادیہ کی 2 بہنیں اور ایک ہی بھائی تھا۔ ہادیہ سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے ابو ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی تنخواہ بھی معقول تھی۔ بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہادیہ اپنے ماں باپ کی سب سے لاڈلی تھی۔ ہادیہ کی عمر بھی شادی کی ہو گئی تھی اور اب نسیم اس کے لیے پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ اب تو ہادیہ کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ابو سے اجازت لے کے اس نے گھر کے پاس ہی جو اسکول تھا اس میں نوکری کر لی تھی۔ تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ وہ اپنے ابو کا کچھ بوجھ بانٹ لیتی۔ ہادیہ کو نوکری کرتے ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت گیا اور پھر وہاں کا پرنسپل بھی چینج ہو گیا۔ وہ پرنسپل ہادیہ کو بہت بری نظروں سے گھورتا تھا، لیکن یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ہادیہ اسکول سے واپس آئی تو اس نے محسوس کیا کہ آج امی کچھ زیادہ ہی خوش ہیں۔ امی کیا بات ہے، آج آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں۔ ہادیہ نے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر ماں سے پوچھا تو وہ اور بھی مسکرا دی۔ ہاں بھائی، خوش کیوں نہ ہوں، آخر کو میری خواہش پوری ہونے والی ہے، امی بھی اسی انداز میں بولیں۔ تاہم ہادیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تب ہی امی پھر سے بولیں، ارے پگلی، میں کس لیے خوش ہوں گی تم نہیں سمجھ سکو گی، چلو میں بتا ہی دیتی ہوں، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ امی نے خوش ہو کر بتایا تو ہادیہ ایک دم چیخ پڑی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح زور سے بولی کہ امی گھبرا گئیں۔ ارے ہادیہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ میں شادی نہیں کروں گی، وہ کہہ کر چلی گئی اور نسیم اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اگلی صبح ہادیہ اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر ناشتہ کرنے کچن میں آئی، جہاں امی گرما گرم پراٹھے بنائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جلدی ناشتہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی ماں کو فرمائش بھی ظاہر کر دی۔ امی آج دوپہر کھانے میں آپ بریانی بنا لینا۔ ہادیہ نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی اور ماں نے بھی ہاں کر دی۔ ہادیہ راستے میں چلتے ہوئے سوچے جا رہی تھی کہ کتنے دن ہو گئے تھے کہ وہ اپنی دونوں بہنوں سے نہیں ملی تھی۔ دراصل اس کی دونوں بہنوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس پر امی ابو بہت خفا تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ان دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی، بلکہ شادی تو گھر ہی میں ہوئی تھی، اور وہ بھی پورے رسم و رواج کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی امی ابو خفا تھے کہ دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اگر میں بھی کسی کو پسند کر لوں تو؟ نہیں، میں کیوں کسی کو پسند کروں گی؟ اس نے فوراً ہی یہ خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب پیچھے سے ہارن کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو پیچھے پرنسپل بختیار صاحب ہی تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے اور ہادیہ کے پاس آ گئے۔ چلیے، میں اسکول جا رہا ہوں، آپ بھی اس میں بیٹھ جائیں، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ہادیہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ نو سر، میں چلی جاؤں گی، اس نے کہا اور تیز چلتے ہوئے اسکول پہنچ گئی۔ اسکول آتے ہی اس نے سکون کی سانس لی، اور پھر اس دن تو پرنسپل نے حد ہی کر دی۔ وہ دفتر سے حاضری کا رجسٹر لینے گئی تو پرنسپل نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور بھاگ کر کلاس روم میں چلی گئی، اور وہاں آ کر وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری کلاس پریشان ہو گئی تھی۔ ایک ٹیچر نے اسے روتا ہوا دیکھا تو اسے اسٹاف روم میں لے آئی، جہاں باقی ٹیچرز بھی موجود تھی۔ کیا ہوا ہادیہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ایک ٹیچر نے آگے بڑھ کر پوچھا تو وہ اور زور سے رونے لگی، اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کے سب شاکڈ ہو گئے۔ یہ جھوٹ ہے، تم سر بختیار کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ ہکا بکا سب کو دیکھنے لگی۔ تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں؟ ہادیہ نے ہاتھ باندھ کر کہا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اور سب باہر نکل گئیں اور وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ پیچھے کھڑا پرنسپل بختیار مسکرا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے بریانی بھی نہ کھائی، بس وہ بہت شرمندہ تھی، سب سے نظریں چرا رہی تھی، جیسے غلطی ہی اسی کی ہے۔ پھر سال ختم ہونے پر پرنسپل نے تمام اساتذہ کو ایک ہوٹل میں پارٹی دی تھی۔
हादिया वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसका दिल कह रहा था कि वहाँ जाए। फिर इसके जहन में कुछ क्लिक हुआ और वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। शहर के एक बड़े होटल में पार्टी थी और वो वहाँ चली गई। वो जानती थी कि वहाँ कुछ ना कुछ होगा और हुआ भी। वो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी जब प्रिंसिपल ने पीछे से इसे एक नज़र देखा और वो समझ गई कि वो इसे ही देख रहे हैं। इसने जानबूझकर अपने कपड़ों पर जूस गिरा दिया। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी शाइस्ता, आपके ऊपर तो जूस नहीं गिरा। हादिया ने साथ बैठी टीचर से पूछा तो वो फौरन बोली, नो इट्स ओके, बट आपके कपड़े। इसने इशारा हादिया के कपड़ों की तरफ किया। डोंट वरी, वॉशरूम से साफ कर कर आती हूँ। वेटर, वॉशरूम कहाँ है? इसने वेटर से पूछा और वॉशरूम चली गई। और इसके पीछे प्रिंसिपल बख्तियार भी वॉशरूम की तरफ चल दिए, जिसे तमाम स्टाफ ने नोट भी किया था। हादिया वॉश बेसिन का नल खोले इस पर झुकी हुई थी जब प्रिंसिपल अत्थर अंदर दाखिल हुए और दरवाज़ा बंद कर दिया। हादिया ने चूक कर पीछे देखा। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हादिया ने घबराते हुए पूछा। ओ हादिया, तुम तो जानती हो कि मैं आप पर कितना फ़िदा हूँ, फिर भी आप इतनी गाफिल क्यों रहती हैं? वो बात करते हुए हादिया की तरफ आया। देखो हादिया, कुछ प्यार मोहब्बत की दो बातें ही कर लेते हैं। सर प्लीज़, खुदा का वास्ता है, आप मुझे यहाँ से जाने दें। वो इल्तिजा करने लगी, लेकिन सर पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसने इस बारे में तो सोचा भी नहीं था कि अगर वॉशरूम से बाहर ना निकल सकी तो फिर क्या होगा। वो इस वक्त हाथ पांव सलामत होते हुए भी खुद को मासूर और बेबस महसूस कर रही थी। फिर इसका जहन तेज तेज काम करने लगा। इसने हाथ पीछे करके नल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसने देखा कि वॉश बेसिन पर एक साबुन रखा है और वो भी गीला। हादिया बहुत परेशान हो गई थी। एक लड़की के पास इसकी सिर्फ इज्जत ही होती है और अगर वो भी चली जाए तो माशरा इसे सर उठाने नहीं देता, जीने नहीं देता। हादिया ने नल खोला और साबुन को इसमें भिगोने लगी और कुछ सेकंड में ही वो पिघलकर आटे की तरह हो गया। और इसने साबुन ज़ोर से मुट्ठी में दबाया तो वो भरभरा होकर इसकी मुट्ठी में भर गया। तो इसने बिना देखे वो सारा का सारा साबुन सर बख्तियार के मुंह पर मल दिया। ये लो, वो ज़ोर से चीखी और पूरा ज़ोर लगाकर इसने इसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। वो अपनी टेबल पर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो पूरा स्टाफ घबरा गया और होटल में मौजूद लोग इसकी तरफ आ गए। क्या हुआ हादिया, कुछ हुआ है क्या? शाइस्ता उठकर पूछने लगी तो इसने ऊंची आवाज़ में सब बता दिया, जिसे सुनकर सब लोग शौक में आ गए। फिर प्रिंसिपल बख्तियार आ गए और बताया कि वो सब झूठ बोल रही है, तो सब लोग उनका यकीन करने लगे। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, हादिया ने चीख कर कहा। तो एक औरत बोली, आपके पास क्या प्रूफ है कि इन्होंने आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की है? औरत ने पूछा। तो हादिया ने अपने आंसू साफ किए और बोली, मैं जानती थी कि आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। खैर, मेरे पास सबूत है। प्रिंसिपल की जुबान एकदम लड़खड़ाई। मैनेजर साहब, कहाँ हैं आप? मैनेजर साहब, हादिया ने रोते हुए पूछा। तो एक मर्द भागता हुआ इसके पास आया। जी मैडम, इसने पूछा था। हाँ भैया, वो रिकॉर्डिंग कहाँ है? हादिया ने घबराहट में जल्दी जल्दी पूछा था। जी मैडम, ये लें। मैनेजर ने वो रिकॉर्डिंग हादिया की तरफ बढ़ाई और हादिया ने वो वीडियो खोलकर सबको दिखाई। ये देखिए, इसने कहा और सब शौक में चले गए। सबसे ज़्यादा तो प्रिंसिपल शौक में था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा करेगी। मैंने इसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए बाथरूम में एक कैमरा सेट करवाया था ताकि सबको प्रिंसिपल की सच्चाई के बारे में पता चले, क्योंकि मैं जानती थी कि ये कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेंगे। मैं तो फ़ायदा उठाऊंगी, हादिया ने मजबूत लहजे में कहा। तो सबकी नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। हमें माफ़ कर दो हादिया, हमने आपको गलत समझा, हमें आपकी बात समझनी चाहिए थी, एक टीचर ने कहा। तो हादिया मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, ये तो हमेशा ही चलता आया है कि कसूरवार लड़की ही होती है। हादिया, मैं अभी और इसी वक्त आपको इस जॉब से निकालता हूँ, प्रिंसिपल ने कहा। तो हादिया ने घूमकर एक ज़ोरदार थप्पड़ प्रिंसिपल के मुंह पर मारा। थूकती हूँ मैं इस जॉब पर जहाँ पर इज्जत ही महफूज ना हो। आप जैसे लोगों की वजह से आज लोगों का सच्चे और साफ लोगों पर से भी एतबार उठ गया है। और आप क्या समझते हैं कि मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगी? पुलिस आती ही होगी, हादिया बोली थी। घर पहुंचकर हादिया फूट फूट कर रोने लगी। सारे घर वाले परेशान हो गए। अम्मी अब्बू ने आगे बढ़कर पूछा तो इसने सब बता दिया, जिसे सुनकर सब साकित हो गए।
मैंने तो पहले ही तुम्हें समझाया था कि शादी कर लो, ये जालिम समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, लेकिन तुम सुनते ही कब हो, अम्मी ने रोते हुए कहा था। हाँ हादिया बेटी, अब भी एक रिश्ता है, बहुत अच्छा है, घर में सिर्फ माँ है और एक बहन, वहाँ शादी के लिए राज़ी हो जाओ। अब्बू ने बड़ी आस से मुझे कहा तो हादिया ने हाँ कर दी और यहाँ से शुरू हुई हादिया की नई शुरुआत। यहाँ इसकी ज़िंदगी ने नया रुख लिया था। इसकी शादी माजिद से हो गई थी। इसकी सिर्फ एक नंद थी और सास, वो भी इससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन यहाँ भी शायद किस्मत इस पर मेहरबान ना थी। माजिद इससे अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इसकी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन माजिद ने कभी इससे प्यार के 2 बोल नहीं बोले थे। इसी दौरान इसकी नंद की शादी भी हो गई थी और इसकी गोद में एक बच्चा भी आ गया। वो निहाल हो गई। इसके बेटे अली ने इसकी फैमिली मुकम्मल कर दी थी, लेकिन माजिद हर बात पर लड़ाई शुरू कर देता। इसको साथ खाना भी नहीं खाने देता था। एक दिन माजिद बैठा नाश्ता कर रहा था जब हादिया ने माजिद से कहा, सुनिए मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। हादिया ने डरते डरते कहा तो माजिद ने झटका खाकर हादिया को देखा जैसे इसने कोई अनहोनी बात कह दी हो। 5,000? माजिद ने पूछा। जी, हादिया ने फ़ौरन जवाब दिया। क्यों? 5,000 क्यों चाहिए तुम्हें? माजिद ने हादिया से पूछा। वो मुझे अली के लिए कुछ गर्म कपड़े ख़रीदने थे। इसके पास कोई गर्म सूट नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं नए कपड़े वगैरह ख़रीदने की, मेरा बेटा है, कुछ नहीं होगा इससे। माजिद कुछ कहने ही वाला था कि हादिया ने चीख कर इससे कुछ कहने से रोक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की? हादिया ने एकदम ऊंची आवाज़ में कहा तो माजिद को हैरत का झटका लगा। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? माजिद ने पूछा। औरत हो, औरत बनकर रहो, समझी तुम? माजिद ने गुस्से में कहा। हाँ औरत हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं। आप नहीं जानते, अगर एक औरत अपनी पर आ जाए तो सामने वाला चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इसके सामने टिक नहीं पाता। हादिया ने भी लफ्ज़ चुबा चुबा कर कहे तो माजिद तैश में आ गया और आगे बढ़कर हादिया को मारने लगा और हादिया तड़प तड़प कर रोने लगी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं और आंसू भी साफ कर लिए। जब वो थक गया तो पीछे हट गया। अब आए होंगे तुम्हारे होश ठिकाने। अगर अब तुमने दोबारा ज़ुबान चलाई तो इससे भी ज़्यादा तुम्हें मारूंगा, समझी तुम? माजिद गुस्से से सुर्ख होते हुए बोला तो हादिया सीधी खड़ी हो गई और आंसू साफ किए। आपने तो अपनी बात कह दी, अब मेरी बारी है। अगर आज के बाद आपने दोबारा मुझ पर हाथ उठाया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी, वो ख़तरनाक अंदाज में बोली। लेकिन माजिद इसी तरह मुस्कुराता रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? माजिद ने मुस्कुराते हुए कहा। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं वो हादिया हूँ जो कुछ अरसे पहले शेर के मुंह से अपनी इज्जत छीन कर लाई थी। वो मजबूत लहजे में बोलती हुई बाहर निकल गई और माजिद इसकी आखिरी बात को समझ नहीं सका था। और फिर जैसे ज़िंदगी मामूल पर आ गई, हादिया अली के साथ मसरूफ़ हो गई। वो माजिद का भी ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो दोनों बिल्कुल आपस में बात नहीं करते थे। और फिर एक रात माजिद ने इससे माजरत भी कर ली। वो खुश हो गई और अब इनके दरमियान सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था। एक दिन माजिद ऑफिस से लौटा तो इसका मूड ठीक नहीं था। हादिया से बोला कि मेरे लिए चाय बनाओ। हादिया चाय का कप लेकर माजिद के सामने चली गई। चाय का कप उसको देते हुए कहने लगी, आपका मूड ठीक नहीं है, क्या बात हुई है? माजिद कहने लगा, नहीं मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। हादिया ने पास बैठते माजिद से हमदर्दाना लहजे में कहा, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मुझे जॉब भी मिल गई है। हादिया ने इतना ही कहा था कि माजिद ने गरम गरम चाय हादिया के ऊपर गिरा दी और इसको बेदर्दी से मारता रहा और वो तड़पती रही, सारी रात तड़पती रही। सुबह जब माजिद उठा तो इसने महसूस किया कि घर में सन्नाटा है। इसने चेक किया तो अली और हादिया घर में नहीं थे। वो घबरा सा गया, तभी दरवाज़ा बजा। इसने दरवाज़ा खोला तो वो दंग रह गया। बाहर पुलिस खड़ी थी और वो उसे गिरफ्तार करके ले गई। आपकी बीवी हादिया ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, इंस्पेक्टर ने कहा तो वो साकित हो गया। वो तो हादिया को एक कमज़ोर बेबस लड़की समझता था, लेकिन वो तो बहादुर निकली थी। इसे जेल में डाल दिया गया और हादिया इसके सामने आ खड़ी हुई। मैंने आपको कहा था ना, लेकिन आपने फिर भी वही गलती की। खैर, अब मैं आपका घर छोड़ आई हूँ और आपकी शिकायत भी वापस लेती हूँ। अगर हादिया चुप हो गई। अगर क्या? माजिद ने पूछा। अगर आप मुझे तलाक दे दें। हादिया ने कहा तो माजिद जैसे तड़प उठा।
वो इससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन माजिद का दिल राज़ी नहीं था इसे छोड़ने के लिए, अपना बच्चा छोड़ने के लिए। मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर्स आप मुझे भिजवा देना, हादिया ने कहा और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो भी रिहा हो गया। घर आकर माजिद को बहुत रोना आ रहा था। इसने ये क्या कर दिया? इसने अपनी प्यार करने वाली बीवी की कदर नहीं की, अपने मासूम बेटे को छोड़ दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसकी एक बूढ़ी और लाचार माँ भी थी, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा रोने लगा। घर में खाना बनाने के लिए कोई नहीं रहा था और ना ही घर में कोई रौनक थी। हादिया और अली की वजह से ही घर में रौनक होती थी। इनके जाने के बाद यकदम घर में सन्नाटा आ गया और अब माजिद के पास तन्हाइयों के अलावा और कुछ ना था और इसने दिल पर हाथ रखकर फैसला कर लिया। हाँ अम्मा, मैंने सोच लिया है कि मैं माजिद से तलाक लूँगी, हादिया माँ से कहते हुए रोने लगी। सोच ले मेरे बच्ची, अपने हाथों से अपना घर जलाना आसान काम नहीं, अम्मा ने भी रोते हुए कहा। तो आप बताएं मैं क्या करूं? जुल्म सहती रहूं? क्यों मैं जुल्म सहती रहूं? जुल्म आखिर औरत ही क्यों सहे? वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, हादिया ने रोते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बेल बजने की आवाज़ आई। बाहर माजिद आए थे। हादिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी गलती पर बहुत नादिम हूँ, माजिद ने नरमी से हादिया को कहा। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, हादिया ने गुस्से से कहा। क्यों कोई फ़ायदा नहीं? देखो हादिया, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, हमारा एक बच्चा भी है और मैं खुद तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। चलो घर, प्लीज़ घर चलो, तुम्हारे बगैर घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है, माजिद ने रोते हुए कहा। तो हादिया ने भी अपने आंसू बह जाने दिए। हादिया माजिद के साथ वापस घर आ गई। माजिद ने दोबारा कभी हादिया पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो जान गया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो अपना हंसता बसता घर बर्बाद नहीं कर सकता था। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।